Hello everyone, this is Pratibha Pandit from Scent and Views Institute of Technology and Management. I am again here for delivering a lecture on hydraulic engineering. Today I covered flow through pipes. This is unit number 3 or module 3 in hydraulic engineering, and this is my lecture number 8. So before starting this particular topic, I just inform you about the importance of this particular unit. This is very important topic as examination point of view, and as your further in your practical examples life. So I will start this topic with some theoretical portion. So I suggest you that you may write your own notes on your notebook, and if you are facing any problem, then you can let me know anytime. You are free to contact me. Okay. So just a minute. Uh, okay. So today the topic is fundamental of fluid mechanics. इसमें हम pipe flow study करेंगे. Okay. Flow through pipe. That is the topic. तो इसमें जो मैं whichever slide I show you, you have to write that only, that theoretical portion only, because this is my whole PDF and it's having some extra things, but I let you know what is in your course and what is important to you, so that only you have to write on your notebook. Okay. So firstly I will start with the introduction part. Okay. आप इस पूरा इंट्रोडक्शन जितने पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उसको सारे को आप नोट कर लिया करिए अपनी कॉपी में, और आपकी एग्जाम टाइम में इन नोट से आपको पढ़ने में बहुत हेल्प होगी. तो व्हाट इज फ्लो थ्रू पाइप्स? फ्लो till today we studied about the open channel flow. In that particular flow we studied that the conduit on which atmospheric pressure exerted on the surface, so we considered as um, open channel flow. Now flow completely bounded by solid surface are called internal flows. जो pipe flow होता है that comes under internal flows. Okay, which include flow through pipes. आप ये समझिए कि पाइप फ्लो का मतलब है कि किसी सराउंडेड बाउंड्री के अंदर आपका पानी फ्लो कर रहा है in spite of having that atmospheric pressure. अगर आप ओपन चैनल फ्लो से इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं. ओके. सो दिस इंक्लूड फ्लो थ्रू पाइप्स. आप ऐसे समझ लीजिए कि पाइप से फ्लो हो रहा है किसी डक्ट के थ्रू जिसका कोई क्रॉस सेक्शन मेंशन नहीं है. नोजल्स, जो पर्टिकुलर नोजल जो डिफरेंट टाइप की शेप की नोजल्स होते हैं, डिफ्यूजर्स होते हैं, सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो सकता है वाल्व्स में. किसी टाइप की कोई फिटिंग है, कोई पाइप है, पाइप से एक या दो ब्रांचेस जुड़ी हुई है, एनी टाइप ऑफ फिटिंग, दैट in that particular structure the types of flow is known as internal flow and it's also known as the pipe flow. Okay.
The basic principle involved are independent of cross-sectional shape, although the detail of flow may be dependent on it. इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि इसका जो इंडिपेंडेंट क्रॉस शेप है, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, इनलेट का शेप भी डिफरेंट हो सकता है और आउटलेट का शेप भी डिफरेंट हो सकता है। एक पाइप से नंबर ऑफ ब्रांचेस जुड़ी हुई हो सकती है। तो इसमें जो प्रिंसिपल या जो मेन पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो ये करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होते हैं दैट्स हैविंग वैरायटी, ठीक है। And third point, the flow regime, laminar or turbulent of internal flow is primarily a function of Reynolds number. As we already discussed about the Reynolds number, what is it? It is a quantity through which we can analyze the type of flow. अब लेमिनार के लिए, पाइप फ्लो के लिए लेमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है, टर्बुलेंट में के लिए अगर पाइप से पानी फ्लो कर रहा है और टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है, तो ये हम निकालते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर को हम इंटरनल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स की हेल्प से, इस फॉर्मूला था रो बी डी बाई म्यू, है ना, इसकी हम हेल्प से निकालते थे। तो हम इससे एनालाइज कर लेते हैं कि लेमिनार फ्लो हो रहा है या फिर कैसा टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो वी ऑलरेडी नो, सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पाइप फ्लो। ओके, आपको पाइप फ्लो से रिलेटेड थ्योरी भी आ जाती है, न्यूमेरिकल इसके ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड वी विल जस्ट स्टार्ट। सो अगर हम किसी पाइप सिस्टम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप में नंबर ऑफ पाइप जुड़े हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिस्टम, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेटम हाइट से सिस्टम किसी भी टाइप का हो सकता है। आप यहाँ पे जो सिस्टम को ले रहे हैं वो एक डेटम की रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शो यू दिस फिगर। आप इसमें देखिए, सपोज ये इनलेट है, ठीक है, ये इनलेट पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है। ये पाइप यहाँ पंप है, पंप के थ्रू पानी निकला और फिर उससे भी दूसरे पाइप के थ्रू यहाँ पे इस चैम्बर में आउटलेट में पानी आ रहा है। तो ये पूरा सिस्टम है, इसको हम एक डेटम की रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। तो दिस इज अ पाइप सिस्टम। A pipe system include the pipes themselves, perhaps of more than one diameter, the various fitting, the flow rate control device, valves and pumps or turbines. देखिए इसमें पाइप्स हो सकते हैं, बीच में पंप्स जुड़े हो सकते हैं, कुछ फ्लो रेट को कंट्रोल करने की बीच बीच में वाल्व्स या डिवाइसेस भी होते हैं। आपको पता है पानी एक पाइप से फ्लो कर रहा है तो उसमें उसकी जो वेलोसिटी है या जो जिस वेलोसिटी जिस एनर्जी से वो फ्लो कर रहा है उसको भी आपको कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस उसमें होती है, एयर रिलीविंग वाल्व, प्रेशर रिलीविंग वाल्व के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज अ पाइप सिस्टम। नाउ अगर हमने ओपन चैनल फ्लो अच्छे से स्टडी किया है, so we already know the properties and the consequence, everything about open channel flow. What is the difference between both? This is a minor difference between both. कभी कभी आपको ये भी चीजें पूछ ली जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पाइप flow completely filling the pipe. The pressure gradient along the pipe is main driving force. आप समझ लीजिए पाइप में फ्लो कर रहा है तो जिस प्रेशर के साथ वो इनलेट पे होगा, आउटलेट तक आते आते उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है। पाइप फ्लो में आपको एक पॉइंट आपको नोटबुक में नोट कर लीजिए, की पॉइंट डाल के, कि हमेशा वी हैव टू कंसीडर मेजर एंड माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लो, ठीक है। माइनर लॉसेस होते हैं जिन्हें हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मेजर लॉसेस को वी हैव टू कंसीडर। सो इसमें जो मेन पॉइंट है वो प्रेशर ग्रेडियंट का है, जो एक ड्राइविंग फोर्स आपका अगर हम देखें तो वो प्रेशर ग्रेडियंट है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। Open channel flow without completely filling the pipes, and gravity along is the driving force that I already told you in open channel कि इसमें क्या होता है, जो पानी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से पानी जो उसके ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट मास के लिए, वो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्योंकि उसमें नेचुरली पानी फ्लो करता है, आप किसी प्रेशर के थ्रू पानी फ्लो नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और पाइप में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आप हैं तो आपने एक इनलेट, एक सोर्स पे एक प्रेशर के थ्रू पानी को भेजा,
जब आप पानी को एक प्रेशर के साथ भेज रहे हैं तो यू आर एक्सर्टिंग अ एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट प्रेशर इज अ प्रेशर अलोंग द पाइप्स। तो इसमें आप प्रेशर को क्रिएट करते हैं फ्लो पाइप्स में, पाइप फ्लो थ्रू पाइप्स में। तो ये जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। समझ में आया? आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आपने ये देखा है फिगर में। मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन और बेसिक चीजें पहले बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप एक पाइप देख रहे हैं जिसमें अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं तो प्रेशर को हम इसमें एस्टिमेट नहीं करते हैं, मतलब इंक्लूड, सॉरी, ये पाइप थ्रू, मतलब ये जो है फ्लो थ्रू पाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जो इनलेट पे होगा वो आउटलेट पे नहीं होगा, दोनों प्रेशर बराबर नहीं होंगे। P1 इज नॉट इक्वल टू P2 एट इनलेट एंड एट आउटलेट, अगर पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, अगर हम ओपन चैनल में बात करते हैं, सपोज दिस इज अ ओपन कॉन्ड्यूट, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अपर सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है एंड दैट इज सेम, ठीक है। तो ये जो था ये बेसिक डिफरेंस था दोनों पाइप फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में। ये आप लिख लीजिए। जस्ट अ मिनट। In hydraulic engineering, whatever portion is included in your syllabus, I just mentioned that only in this particular slide. So extra things I am not taking right now. Okay. इसके बाद आप सीधे आ जाइए, आपने दोनों में डिफरेंस देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया कि इंडिकेशन ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। कभी कभी ये चीजें भी आती हैं कि आप रेनॉल्ड्स नंबर आपने लिखा है, ये फॉर्मूला आप कभी कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, रो बी डी वाई न्यू लिखा रहता है, वो सेम चीज लिखी हुई है आपकी, रो बी एल वाई न्यू। न्यू इज द विस्कोसिटी, ठीक है, where v is the velocity, l is the characteristic dimension of flow, डायमीटर ले लेते हैं हम, यहाँ पे रो बी डी पड़ा हुआ है, अभी तक हमने वही फॉर्मूला है ये। तो इसके लिए जो आपको पॉइंट याद रखना है दैट इज कि अगर हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम राउंडेड पाइप्स के केस में देखते हैं, राउंड पाइप समझते हैं जो सर्कुलर पाइप होते हैं, उनके लिए रेनॉल्ड नंबर अगर 2100 से कम है तो लेमिनार फ्लो होता है। 4000 से रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन इन पाइप फ्लो, देन दैट इज turbulent flow, that is a standard, and in between 21,000 to 400 ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो एंड द रेनॉल्ड्स नंबर। सो नाउ आई विल कम ऑन, no, boundary layer is not a numerical portion directly. Okay, just a minute. Directly I have to discuss some numerical with you. Okay, so these things you just write down. Now I will show you a new notes. In that numericals are very good and it's important. आप इसके बाद समझिए, हम फ्लो थ्रू पाइप स्टडी कर रहे हैं जिसमें मैंने बोला यू हैव टू कंसीडर सम लॉसेस। नाउ यू हैव टू स्टडी लॉसेस इन पाइप्स, ठीक है। व्हाट आर द लॉसेस इन पाइप? वी हैव टू कंसीडर फ्रिक्शन लॉसेस ऑफ पाइप। हमें ये समझना है कि जब पानी पाइप से फ्लो करता है तो उसमें कितने टाइप के लॉस होते हैं। बहुत सारे लॉस होते हैं जिसमें हम मेजर और माइनर लॉसेस को इंक्लूड करते हैं। आपको इसमें जो मेजर जो लॉसेस वो होता है फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। पानी जब किसी भी पाइप से, इस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी बाउंड्रीज और दो सरफेस, दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो लॉस है एनर्जी का, उसे हम लोग फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डार्ची फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन लॉस ऑफ हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको लिखने हैं सारे, ठीक है। डार्ची फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन लॉस,
तो ये मैं डायरेक्टली भी बता सकती हूँ, ये इन्होंने छोटा सा इसका ड्राइव किया हुआ है, वैसे हम डायरेक्टली ही यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। आपको फ्रिक्शन लॉस को ही हम कंसीडर करते हैं पाइप्स में, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। इसके लिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो हेड लॉस है उसका फॉर्मूला है HF is equals to 4FLV square upon 2GB. That is an empirical formula and you have to learn directly. ठीक है, so this is a Darcy formula 4FLV square by 2GD. You just write down this. ठीक है, इसमें अगर हम v की वैल्यू को, v क्या होता है q अपॉन एरिया, एरिया को हम राउंड पाइप के लिए पाई बाई 4d स्क्वायर लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम v की वैल्यू q अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 रख देंगे तो यहाँ से HF की फॉर्मूला ये आ जाएगा आपका q और d के टर्म्स में, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। कभी कभी हम डायरेक्टली इसका यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ वी विल टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर पाइप, इस फॉर्मूले में F क्या है आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट, d क्या है डायमीटर ऑफ द पाइप, l क्या है लेंथ ऑफ द पाइप, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द पाइप। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसके लिए हम ऊपर जा सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। एक पाइप है जिसमें आपने प्रेशर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के प्रेशर से डिफरेंट है, ठीक है, तो जो भी लॉस हो रहा है उसको हम इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको समझ लिया, ठीक है। आप इसकी वैल्यू सॉरी एफ की जो वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट एंड मोस्टली गिवन टू यू एट डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप नेटवर्क्स, तो फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली आपको गिवन होगा। नाउ वी विल डायरेक्टली कम्स ऑन द न्यूमेरिकल बिकॉज इसमें थ्योरी का कोई आने का कोई चांस होता नहीं है, तो हम न्यूमेरिकल पे सीधे आते हैं। अ वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल इज a pipe of 1 meter diameter and 15 kilometer long transmits water of velocity of 1 meter per second. The friction coefficient of pipe is 0.005. Calculate head loss. This formula based question you can directly find out with the help of this formula. देखिए आपने सारी चीजें गिवन है, आपने निकाल दिया। तो मैं बस फॉर्मूले का यूज आपको बता रही थी। दूसरी बात, ये जो हेड लॉस है वो मीटर में निकलता है, ये तो पता है हेड लॉस, ये हमने ऑलरेडी पता है। लॉस किस में हो रहा है एनर्जी, एनर्जी को हम लोग किसके टर्म्स में लेते हैं हेड के टर्म्स में लेते हैं, मीटर्स में निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया यहाँ तक एक छोटा सा न्यूमेरिकल। इसके बाद द Darcy-Weisbach equation relate the head loss due to friction along the given length of the pipe, the average value of the fluid flow for an incompressible flow, ठीक है। The friction coefficient F is 4F is not a constant and depends on the parameter of pipes and velocity of the flow. As I already told you कि आपकी वैल्यू constant नहीं होती है, but it is known to high accuracy within certain flow regions. For given condition, it may be evaluated using various empirical and theoretical relation obtained from the chart. चलिए कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी याद कर रखा है हमने, रो बी डी बाई म्यू। आपको बताया मैंने 2100 या 2000 एक ही बात है। लेमिनार फ्लो के लिए लेस देन 2000 होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 4000 या 4000 और 2000 के बीच में, तो क्या सा फ्लो होता है ट्रांजिशनल फ्लो होता है, ठीक है। इसके बाद आप लेमिनार फ्लो के लिए एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट और आरई में जो रिलेशन है वो भी नोट कर लीजिए। एफ इज इक्वल टू 64 बाई आरई, आरई इज द रेनॉल्ड नंबर, ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फॉर लेमिनार फ्लो एफ इज इक्वल टू 16 बाई आरई, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसे हम आरई की हेल्प से निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर टर्बुलेंट फ्लो, इसके लिए आप एफ का फॉर्मूला नोट करिए, एफ इज इक्वल टू 0.079 अपॉन आर ई के पार 0.25, इसको आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले का कहाँ कैसे यूज करना है, आई ऑलरेडी
then I let you know further. So f is equals to 0.079 upon RD के पावर 2 by 0.25. ठीक है, तो ये अभी आप बेसिक फॉर्मूले नोट करते जाइए। एक्स्ट्रा जो चीज है जिनका कोई भी यूज नहीं है वो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, इसके बाद मैं आपको एक लेक्चर में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके बाद आप इस इक्वेशन को भी नोट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट F, diameter of pipe. So this is a quite difficult equation. 1 upon under root f is equals to -4 log 10 base 10 k upon 3.71 d plus 1.27 upon rd under root f. इसमें जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू हर एक टाइप के मेटल के लिए अलग होती है, उसे हम एक मॉडी चार्ट है उसकी हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पाइप किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करती है आपकी के की वैल्यू। सो दिस इज द पाइप मटेरियल, दीज आर द वैल्यू ऑफ के। अब इफ यू वांट टू राइट एंड यू कैन राइट, अदरवाइज द के की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये हमने अलग अलग टाइप के मेटल के लिए, पाइप के लिए अलग अलग टाइप की के वैल्यूज को नोट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। दिस इज अ न्यूमेरिकल एंड यू मे राइट ऑन योर नोटबुक फर्स्ट। Sorry, this one. So water flow in a steel pipe, diameter 40 mm, K 0.045 into 10 to the power -3 मीटर। म्यू आपको गिवन है, म्यू इज द विस्कोसिटी जिसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, with rate 1 liter per second, determine the friction coefficient and the head loss due to friction per meter length of the pipe using Modi chart smooth pipe formula। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन के लिए बी निकालेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन ए। आपका जो रेट या डिस्चार्ज, अभी रेट लिखा हो तो आप उसको डिस्चार्ज ही समझते हैं। तो रेट कितना दिया, 1 लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट आपने चेंज की, मीटर क्यूब में चेंज किया तो 0.0001 अपॉन ए, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी कितना है आपका 40 mm, इसकी यूनिट आपने चेंज की मीटर में, तो आपने वेलोसिटी यहाँ से ही निकाल दी। ठीक है, इसके बाद आप रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, रो बी टी बाई म्यू। रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। v आपको पता है, वेलोसिटी आपने ये निकाला है। ठीक है, इनटू डायमीटर 40 अपॉन म्यू, म्यू ऑलरेडी गिवन टू यू। तो आपने इसका यूज किया तो आपकी एक वैल्यू आ गई जो कि 4000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे किस टाइप का फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। आपको कभी कभी ये भी बताना होता है कि फ्लो किस टाइप का हुआ है। इसके बाद आप एक के वाई डी की वैल्यू निकालेंगे। के कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम स्टील पाइप के लिए डायरेक्टली यूज करेंगे, कितनी, 0.045। ठीक है, चार्ट से, अपॉन डी, डी इज द डायमीटर। तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आ गई आपकी। आर ई की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है। ठीक है, तो आप एफ की वैल्यू भी चार्ट से निकाल सकते हैं, या फिर ए की वैल्यू पता होने के बाद आप एफ की वैल्यू फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये पता चल गया तो आप एच एफ का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4FL V स्क्वायर बाई 2GD। इसमें आपकी सारी चीजें आपको गिवन है। एफ आपको यहाँ से पता चल गया है के की हेल्प से, और वी ऑलरेडी आपको पता है। लेंथ ऑफ द पाइप इज 1 मीटर, फ्रिक्शन पर मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये 1 वहां से आपने रख दिया। वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2GD, तो ये आपका कितना आ गया, 0.0209 मीटर पर मीटर ऑफ पाइप। ठीक है, इसके अलावा आप स्मूथ पाइप के लिए भी फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका ये फॉर्मूला आपने यूज किया है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए 0.079 अपॉन आरडी के पावर 0.25। इसकी हेल्प से आपने एफ निकाल दिया। अगर आपके पास एफ आ जाएगा तो स्मूथ पाइप के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मोडी चार्ट की हेल्प से बोले तो के बाई डी को आपको निकालना है। ठीक है, एच एफ सीधे आप यूज करेंगे 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। तो यहाँ से भी आपका हेड लॉस निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द solution of this type of question. Okay,
So this is all about the introduction of this unit. I'm just taking more numerical about this. Okay, before starting that types of numerical, I just want a small concept that is, देखिए, one type of numerical we already complete, that is related to head loss. Directly use the formula. Now दूसरा जो आते हैं वो आते हैं कि बहुत सारे पाइप्स को एक ब्रांच एक सिस्टम में हमने जोड़ रखा है, that is flow through pipe system. ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप सिस्टम. आप इसके लिए ये नोट कर लीजिए कि सपोज ये एक आपका एक कॉन्ड्यूट है, एक आपका चैम्बर है जिससे एक पाइप जुड़ा हुआ है, दूसरा पाइप देख रहे हैं अलग अलग डायमीटर के हैं, उससे भी फिर एक कम डायमीटर का 3 पाइप जुड़े हैं, वो भी दूसरे चैम्बर से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो अब पानी यहाँ से इस तरह फ्लो कर रहा है जिसमें कि कुछ हेड लॉस होगा. जब पानी पाइप से फ्लो करता है तो उसमें हेड लॉस होता है. ठीक है, तो पाइप अगर सीरीज में जुड़े हैं तो हम हेड लॉस को कैसे लेते हैं. आप देखिए, पाइप्स इन सीरीज with different diameter and length connected together forming pipeline. Consider pipes in series discharging water from a tank with higher water level to another lower water level as shown in this figure. ठीक है, तो आप इसमें HL between the two tank, इन दो टैंक के बीच में जो HL है, that is the sum of individual friction losses of pipes. अगर पाइप 1 में जो हेड लॉस है वो HF1 है, इसमें HF2 है, इसमें HF3 है, तो हमारा टोटल हेड लॉस क्या हो जाएगा, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3. जस्ट अ मिनट, ये नीचे हो गया है. HL is equals to HF1 HF2 प्लस HF3. हेड लॉस को हम पाइप के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 4FL V²/2GB. फर्स्ट पाइप की लेंथ L1 B1 2G D1. दूसरे पाइप की लेंथ सपोज L2, वेलोसिटी V2 और डायमीटर D2. थर्ड पाइप की लेंथ है L3, वेलोसिटी उस पाइप के थ्रू है V3 एंड डायमीटर D3. यहाँ पे मैंने V की जगह, या फिर हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे हमने V की जगह QD रख दिया. आप इसको याद यूज करिए सीधे. ठीक है, अगर सीरीज में पाइप्स कनेक्टेड है, अगर पाइप्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर पैरेलल में पाइप कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, एक पाइप आपका ये है, उससे पैरेलल में एक पाइप कनेक्ट होगा, दोनों में हेड लॉस बराबर होगा क्योंकि पाइप अगर सेम डायमीटर और लेंथ की कनेक्टेड है. तो आप यहाँ से देखिए, पाइप्स इन पैरेलल विद डिफरेंट डायमीटर एंड सेम लेंथ, डायमीटर अलग हो सकता है लेकिन लेंथ क्या है, सेम, वेयर ईच पाइप इज कनेक्टेड सेपरेटली टू इंक्रीज द डिस्चार्ज. ठीक है, इसमें हम क्या है, आप ये देखिए, नेग्लेक्टिंग माइनर लॉस, इट इज ऑब्वियस दैट टोटल हेड लॉस HL बिटवीन टू टैंक इज सेम एज द फ्रिक्शन लॉस थ्रू द ईच पाइप. एक पाइप में जो भी हेड लॉस हो रहा है, हर एक पाइप में हम उसी को एज्यूम करते हैं. सपोज दोनों जो मेन आपके कॉन्ड्यूट है उनके बीच में जो हेड लॉस है दैट इज HL, और इंडिविजुअल पाइप में HF1 हो रहा है, दूसरे पाइप में HF2 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे अगर लेंथ को हम बराबर लेते हैं. तो आप फॉर्मूला इसमें यही लगाएंगे और डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे Q is equals to Q1 plus Q2. Okay, so this is a theoretical portion about when the pipes are in series or in parallel. Okay, so this is all about the introduction of about the flow through pipes. I will take more lecture about this particular unit, and I will start in my next lecture from the numerical portion of this particular topic. So thank you very much, guys. If you have any doubt till now, then you let me know through your message, and you can call me and contact me anytime.